Good evening. Good evening. Welcome to the CrackIAS. This is weekly webinar, and the purpose of this webinar is to spread the information among our students. Basically, we will be dealing with the queries we get on daily basis on our portal in order to inform our all these student about the preparation strategy or any type of query they it come or came around their mind. So basically, I will be using bilingual. This means I will use Hindi as well as English in order to cater the needs of our Hindi speaking student as well as our English speaking students. Now, first, coming to the introduction of the Crack IS, we all know that it was started around 2007. We have 10 years of track record, 10 plus years of the track record in delivering at least prelims question. Even if you go to the track record of our institution, this year we produced 77 question from our red books. And about the red books, we can see this is the red book, which is the material by the Crack IS. Basically, it is pre-oriented book wherein we have contents based on the trends and analysis of the UPSC previous year questions. Now, coming to the query section, before dealing with the query, I would like to give a brief introduction of what we are supposed to deal in the next coming time. बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि वेबिनार है, इसका पर्पस है कि जो भी क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट के माइंड में आता है उसको हम सॉल्व करें। होता क्या है कि हमें डेली टू डेली बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? उनको एक साथ कैटर करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना? ऑल्दो ये हमारा काम है टू कैटर ऑल द इंफॉर्मेशन, बट हमें ये फील हुआ ऑफ लेट कि यदि हम एक इस टाइप का वेबिनार शुरू करें, जिससे क्या हो कि जो कॉमन क्वेश्चंस है, वो काफ़ी लोगों के पास कम टाइम में चला जाए, तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोगों ने ये वेबिनार शुरू किया है। तो बेसिकली ये पार्टिसिपेटरी काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। इट्स ऑल्दो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, बट द पार्टिसिपेशन इज द की टू डील विथ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। ऐसे भी आता है, काइंडली लेट अस नो, ठीक है ना? वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डील विथ दोज क्वेरीज वन बाय वन, ठीक है? अगेन कुछ गाइडलाइंस में बता देना चाहता हूँ कि किस टाइप की क्वेरीज आप दे सकते हैं, ठीक है ना? और उसका टर्न अराउंड टाइम यानी टैट कितने कितने टाइम का होगा। Queries first few weeks में we will try to discuss the basically strategy part, means कि how to prepare, okay, what is the syllabus, ठीक है? How to I mean to say how to decode the syllabus of the UPSC prelims as well as mains, how to write a good answer, or how to develop the critical thinking of assimilation or capacity of critical analysis while dealing with any news or dealing with any answer, okay? Or once we are done with these generic type of question, we will address the specific question of our student. Like आज भी हमें एक बहुत सारे questions आए हैं ऐसे। एक रजत मिश्रा है, उनका क्वेश्चन आया है, शायद रजत मिश्रा और त्रिपाठी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट उनका कुछ क्वेश्चन आया। वी विल एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस आल्सो सूनर और लेटर. It means if we are not able to cater their question this time, we will definitely deal their question the next time. Now, coming to the syllabus part. फर्स्ट क्वेश्चन जो एक माइंड में आता है कि हाउ टू डिकोड द सिलेबस। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो यूपीएससी का सिलेबस है उससे किसी भी स्टूडेंट को, एटलीस्ट जो न्यू कमर्स है, जो नो वॉइसेस हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड इम्बाइब द सिलेबस टोटली। मतलब फुल जो होता है ना सिलेबस, उनको एकदम से याद होना चाहिए। और फॉर दिस either refer the notification by the UPSC or the same syllabus has been scientifically segregated by our team. It means कि जो syllabus है उसको हम लोगों ने एक साइंटिफिक डिवाइड कर दिया है। और ऐसे तो देख के आप यदि यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखते हैं तो इट सीम्स कि आपको बहुत सारे 4 पेपर को डील करना होता है बिसाइड द एसे एंड दिस लैंग्वेज वाला पेपर। बट व्हेन यू गिव ए माइन्यूट डिटेल टू थिंग्स, only 358 topics are there which need to be
not deal while going through the preparation kind of thing. So क्या होता है कि आपको एक प्रेशर आता है जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल आवर स्टूडेंट टू गो थ्रू द आवर वेबसाइट. वहां पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने सिलेबस को एक इवनली डिवाइड किया है टू द 358 टॉपिक्स ओनली. और ये ऐसा नहीं कि बस हम लोग ने उठाया और सेग्रीगेट कर दिया. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट पास्ट 20 ईयर ट्रेंड, क्वेश्चन ट्रेंड्स. मीन्स हम लोग ने डिवाइड किया, थोड़ा 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 करके सिलेबस को डिवाइड कर दिया. और आप हमारे वेबसाइट पे जाइए तो फिर वहां पे आपको दिखता है कि हाउ इवनली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड यू विल फाइंड द क्वेश्चंस अलोंग साइड दिस आल्सो. लाइक अभी तो हमारा हम लोगों ने मेंस का क्वेश्चन अपलोड किया है लास्ट 20 years. Sooner or later we are going to upload our 40 years prelims questions also, in order to give you a glimpse of what is the trend and thus how you should adopt to the needs of the, I will say, UPSC, what they demand. Now this is about this is about the syllabus part. Now coming to the our few courses. I will first start with this test series. Okay, in inverted comma I would like to say that our prelims test series is free of cost. Okay, anyone and everyone can enroll into this prelims test series. It is a weekly exercise. It means on Sunday it will go live on our platform. You can go to the our platform and attempt 50 quality question, which is it is the questions are framed by our experts and overseen by the recommended candidates. Okay, so ऐसा है कि हमारा जो यूपीएससी का मॉक टेस्ट है वो फ्री है. मार्केट में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देना होता है, एंड इट इज बहुत सारे तो सब स्टैंडर्ड भी, आई विल रादर सेइंग दिस कि सब स्टैंडर्ड, बट हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज शुरू किया है. ये वीकली एक्सरसाइज होगा, एंड on the weekly basis we will having this test series that will be live on our platform. You can enroll. It is free. I will repeat, it is entirely free of cost. Now coming to the current affairs thing. Current affairs is playing quite an important role while cracking, or while it helps you to get into the services actually. I would rather say. तो क्या होता है कि करंट अफेयर्स का भी अप्रोच होता है, ठीक है ना, इन few minutes. And now coming to the how we deal with this current affair things. So we have two types of plan with us. First, on monthly basis we will send the e-books of the current affairs. उसमें क्या होगा, बस आपके पास क्रूड न्यूज होगा. इट मींस मान लो कोई न्यूज आया है आज. इफ आई विल गो टू द न्यूज़पेपर टुडे, this is on the Rajya Sabha, utility of the Rajya Sabha. So you will get these kind of crude news by end of any month. Okay, let us say for the month of July you will get a e-book. Okay, this exercise will go monthly. means हर एक मंथ में इन आपको क्रूड न्यूज मिलेगा सिर्फ. और ये ऐसा नहीं कि ये कुछ दिस इज नॉट पर्पसलेस. आई विल शेयर द विजन बिहाइंड इट. फर्स्ट वन, व्हेन यू गो टू द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, ठीक है, और उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट शुड हैव द क्रिटिकल पावर ऑफ थिंकिंग और एस्टिमुलेशन. आप में से यदि किसी ने अच्छे से नोट. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाई क्रूड न्यूज? बिकॉज क्या होता है ना कि आपके पास मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल न्यूज जो भी है, नोट्स हैं, आई विल से नोट्स, वो स्पून फीडिंग होती है बेसिकली. इट मींस कि आपको न्यूज का नोट्स बना कर दिया जाता है, न्यूज नहीं दिया जाता है. तो मैं आपको यदि बोलूं कि वेयर इज द क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमुलेशन, आपकी स्पून फीडिंग हो रही है. और देयर आर लॉट्स ऑफ बॉन्सेडनेस टर्म की वो आपने कभी सुना नहीं होता. आपके पास अचानक से क्वेश्चन आप फेस करते हैं तो उससे इश्यूज क्या होते हैं कि आप ब्लैंक हो जाते हैं. तो बेसिक purpose of giving the crude news is to develop the art of reading, inculcate the power of critical thinking also. Okay, but that doesn't mean कि हम लोग उसका notes नहीं देंगे. At end of every third month we will provide notes of all these news, wherein we will be providing the the notes in a gist form. This simply means कि मान लो कोई न्यूज आ रही है, ठीक है ना,
जनरली न्यूज और 3 मंथ ही क्यों, मैं वो भी बताऊंगा आपको, ट्राइमेस्टर क्यों। जनरली ये ट्रेंड है कि कोई न्यूज यदि फ्लोट होती है तो उसका मतलब शेल्फ लाइफ, आई विल से इट 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 इज ऑफ 3 मंथ ओनली। दैट मीन्स कि 3 मंथ का ही कोई शेल्फ लाइफ होता है। लाइक अभी क्वेश्चन आ रहा है यूटिलिटी ऑफ द राज्यसभा, इट विल फ्लोट अराउंड द 3 मंथ। 3 मंथ में इतने सारे आर्टिकल आ जाते हैं कि बियॉन्ड कुछ रहता नहीं, बचता नहीं, मतलब आपको न्यूज को एनालिसिस करने के लिए, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बचता आफ्टर 3 मंथ। सो after every 3 months we will give a gist of the news in hard form to the students. So this is the purpose. Again, resources what we have the robust ecosystem wherein we follow the 20 different kind of resources, which means कि मतलब स्टूडेंट की किसी की लिमिटेशंस होती है। इवन कि मैं यदि जाता हूँ तो इधर आई गो टू द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस और द मिंट, or humanly it is not possible to cover the 20 different resources by a student, but यूपीएससी का रेंज ऑफ द लेट इट इज इंक्रीजिंग। इट मींस क्या हुआ है कि यूपीएससी ने अपने रेंज को काफी बढ़ा दिया है। अब वो मतलब हिंदू इज नॉट ए सिने क्वा नॉन फॉर यूपीएससी, देयर आर क्वेश्चंस कमिंग बियॉन्ड द हिंदू आल्सो, like the few government website, there is PIB or any ministry is there, question अब वहां से भी आ रहे हैं। Otherwise the PRS is also there, although I'm not endorsing any website or any kind of thing, but ये होता है कि एक न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट अब नहीं रह सकते आप, क्योंकि ट्रेंड्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि क्वेश्चंस का रेंज बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है। सो यू विल हैव आल्सो हैव टू अडॉप्ट टू ऑल दिस चेंजिंग सिनेरियो। फॉर दिस वी फॉलो 20 डिफरेंट रिसोर्सेज हिंदू जो वेल नोन है, जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, मिंट हो गया, फर्स्ट पोस्ट हो गया, पीआरएस हो गया या पीआईबी हो गया, इतने सारे जो फिक्स रिसोर्सेज हैं। बिसाइड दैट योजना वी कवर, कुरुक्षेत्र वी कवर, and there are certain websites like RBI is there या सेबी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके भी जो नोटिफिकेशंस या जो भी आते हैं ना, दैट वी ट्राई टू कवर एंड कैटर एंड ट्राई टू give a gist of all these things, prepared by definitely experts, in order to prepare you both ways. First one, to inculcate the habit of reading and critical power of thinking. Second one is to give you the gist in order to reduce the pain faced by a student while dealing with these newspaper, because न्यूज़पेपर रोज आता है, 10-15 पेज तो होते ही हैं, और 10-15 पेज में आपको बड़ा मुश्किल सा होता है कि इफेक्टिवली हर एक दिन पढ़ना। सो एनी हाउ यू विल नीड ए गुड notes in order to deal with all these things. Now coming to the first question, I got one question from one of the student. I will rather say this is from. Please allow me some time. Yeah, first question is, yeah, first question is on. Please allow me some time. Yeah, from Jyoti, Jyoti Delhi. Yes, Jyoti. Can I completely rely on the crack IS notes and study plan? Yeah, very good question. Like ये क्वेश्चन बहुत फ्लोट होता है, और जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं या फिर जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमेशा ये क्वेश्चन आता है, तो इट्स बेटर टू डील दिस राइट नाउ। सो बेसिकली मैं एक वर्ड यहाँ पे क्वालिफाइंग वर्ड है कंप्लीटली। सो ज्योति, फर्स्ट थिंग आई वांट गो इनटू द लाइक एम्प्टी टॉक। आप जाइए हमारे वेबसाइट पे 10 साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और क्रैक आईएएस के नोट से उसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। इट इज एम्पेरिकल एंड डेटा ड्रिवन फैक्ट दैट वी आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन विच इज सफिशिएंट टू क्रैक प्रीलिम्स। और ये 1 या 2 साल का नहीं है कि मान लो 1 साल आ गया, हो सकता है किसी के नोट से आएगा। सिंस 10+ years वी आर प्रोड्यूसिंग, सो I will say if not completely, but it is sufficient enough to crack the UPSC prelims. Even this year we produced 77 question. You can't imagine the the 77 question. थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूं तो आप 2 बार prelims qualify कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। Again, coming to the, I hope the answer, you got the answer. Again, in case you have any doubt, you can walk into our centers. It is in Delhi, Pune, and Hyderabad, and we are trying to open few more center depending upon the demands. It's completely demand and supply kind of thing. So you can go to our center and have a look to our notes. आप यदि satisfied हो जाते हैं, only go to the for the buying and all. But you can go to our website, वहाँ पे
you will see the last 10 year का हमारे पास पूरा compilation है और वहां पे 10 year का question भी available है, ठीक है ना. So definitely it is sufficient to crack the prelims at least, ठीक है ना. And second part is and the study plan. Yeah, now coming to the study plan, those who are not aware of this study plan, एक्चुअली ये स्टडी प्लान मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये स्टडी प्लान थंब रूल नहीं है, ठीक है ना. दिस इज नॉट अ फाइनल बुक बट इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट, ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस. और ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस कैसे मैं बताता हूँ. देखो क्या हुआ ना कि हमारा जो सिलेबस है वो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. वैसे मैंने पहले भी बताया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ. इट इज ओवर आवर वेबसाइट ऑल्सो कि सिलेबस को जुडिशियली डिवाइड किया गया है, ठीक है ना. और बेस्ड अपॉन द वेटेज ऑफ एवरी टॉपिक माइक्रो लेवल पे हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया है वीक में. देयर आर 55 वीक्स. आई विल रिपीट. अब लोग जैसे जनरली इट इज इन द माइंड्स ऑफ एन एस्पिरेंट कि हमारे पास 1 साल का टाइम है, बट मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, माइक्रो लेवल पे आता हूँ. यू हैव ओनली 55 और 56 वीक्स, ठीक है ना, इफेक्टिवली, ठीक है ना. प्लस माइनस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करके, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, कभी आप बीमार पड़ सकते हैं, कभी छुट्टी हो सकती है, कुछ हो सकता है, ठीक है ना. तो इंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 55 वीक्स. अब इसका क्या है कि 55 वीक्स ऐसे डिवाइड किया कि आप की जो प्रिपरेशन हो प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी वो पूरी तरह हो जाए, ठीक है ना. पूरी तरह ऐसे हो जाए कि आप यदि स्टार्ट करो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक, तो नेक्स्ट 55th वीक में यू विल एबल टू कंप्लीट द सिलेबस सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम, ठीक है ना. इतना तो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेस्ड अपॉन द क्या आपको इसमें आपको एटलीस्ट 20 ईयर का मेंस क्वेश्चन कवर हो रहा है और 40 ईयर का प्रीलिम्स क्वेश्चन हो रहा है कवर. एंड इट इज एम्पिरिकल एंड डेटा ड्रिवन फैक्ट आल्सो. विल शो यू whatever the whomsoever is the student will show you the evidences also. In case you want to, you can visit our website or you can go to our any of the centers. So डेफिनेटली ये माइक्रो मैनेजमेंट है, ठीक है ना. इन ऑर्डर टू गिव एन इंसाइट इनटू द सिलेबस एंड द टाइम यू विल नीड टू इन्वेस्ट अपॉन द प्रिपरेशन, ठीक है ना. तो 55 वीक्स को इस तरह से मैनेज कर दिया हम लोगों ने ताकि आपका सिलेबस इवनली सब जगह स्प्रेड हो जाए. और आपका इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, लाइक आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डाउट होता ही है. मुझे भी अभी मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो इधर वी गूगल और वी गो फॉर एन एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है ना. सो इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, जनरली हमारे पास क्वेश्चंस बहुत कम आते थे पहले, ठीक है ना, बट ऑफ लेट वी आर गेटिंग क्वेश्चंस. सो वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस कल्चर ऑफ साइलेंस. दैट्स व्हाई ये सैटरडे का हम लोगों ने रोल आउट किया प्लान wherein anyone of expert from our team will address to queries of the student in order to solve all these queries और थोड़ा ऐसा भी हो कि सबको फायदा कहीं ना कहीं मिल जाए. सो दिस इज एंड उसके बाद यदि ये वीकली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो देयर विल बी one test on the Sunday, so prelims based test, and later on we will roll out the mains test also from October onward. So Jyoti, I think your answer has been addressed well. In case you are even having any problem like kuch bhi hai, so you can call to our the helpline number or whatever the channels are there. Feel free to ask any question, we are there to help you. हाँ, next is from Toshima Gupta. Question is, it is okay if I skip any week test. Yeah, Toshima. Look, we all are human being, ठीक है ना. There are chances कि एक एनर्जी लेवल के साथ प्रिपेयर आप नहीं कर सकते फॉर द इंटायर 1 or 2 years, जो भी है आपका, आपने जो भी प्लान कर रखा है. और 55 वीक्स आई विल रादर से आई विल गो विथ आवर सिलेबस ओनली. So yes, you can skip. यदि आपको कुछ unforeseen conditions if you are meeting, you can skip this the weekly test or the plan. But make sure कि you later on meet all these deadlines और जो भी syllabus दिया हुआ है ना, with an extra mile. Like if you will have to go, in case it is it is based on the 4 or 5 year of continuous study. But in case you are skipping any week of exercise or the test series or any doubt session, you will have to go for an extra mile next week. Like आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं अगले वीक, ठीक है ना. एंड यू कैन गो थ्रू द entire that syllabus test series and you can also attend later on because ये हमारा YouTube पे भी अवेलेबल रहेगा जितने भी डिस्कशन वीडियोस हैं. सो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि कोई ना कोई स्किप करेगा ये कोई भी वीक, तो यू कैन गो एंड कैच अप लेटर ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Hello sir, just wanted to know if conventional coaching classes are mandatory to clear this exam. Oh, very good question. It is from Vinay. विनय, वेरी गुड क्वेश्चन। लाइक देखिए, इसमें में ना दो टाइप की चीजें हैं। देयर इज वन प्रोवर्ब, नोइंग व्हाई इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, नोइंग हाउ इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डील विथ व्हाई, ठीक है ना। सो द थिंग इज, देयर मिक्स ओपिनियन ऑन दिस कि इफ द कोचिंग क्लासेस आर मैंडेटरी और नॉट। दो दो तीन फैक्टर पीछे होता है। फर्स्ट, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम। सेकंड, इफ यू हैव सफिशिएंट मनी टू इन्वेस्ट इन, एंड यू कैन टेक द पेन ऑल्सो, ठीक है ना। बिकॉज कोई भी कन्वेंशनल कोचिंग क्लासेस होती हैं तो इट रोव्स अराउंड द कॉस्ट लैंड अराउंड मोर देन 1 lakhs। और गिवन द कंडीशन ऑफ इंडिया, और मैं एक जनरल फैमिली की बात करूँ, इट इज नॉट इवन पॉसिबल फॉर नॉर्मल स्टूडेंट टू पे 1 lakhs एंड मोर। और बहुत सारे लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी होती भी है, बियॉन्ड डाउट होती है, बट टाइम कंस्टेंट होता है बहुत लोगों के पास। लाइक टू गो फॉर द कोचिंग क्लासेस फॉर इंटायर 1 year or 1.5 years, it is not feasible and possible for few students. So depending upon the nature and where you are in, like just reposition yourself, take a break. In case you are able to pay and you have time, enough time to invest in, you can go for the coaching. But the thing is, आपको 2 या 3 साल के कोचिंग के बाद ये रियलाइज होता है ना कि शायद सेल्फ स्टडी और नोट्स ही काम आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। सो लाइक आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन और कुछ भी, बट जनरल परसेप्शन ही आपको ये डेवलप होते हैं ना, जब 1-2 साल की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, अल्टीमेटली आपको नोट्स और खुद का जो प्रिपरेशन होता है ना, वही काम आता है। टीचिंग पर से ठीक है, अच्छा है, बट एनी हाउ कहीं ना कहीं आपको वो 2 या 3 साल के बाद लगता है कि शायद मैंने टाइम भी वेस्ट कर दिया और कुछ ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया दैट इज ऑफ नो यूज ऑफ लेट, ठीक है ना। सो रादर आई विल से कि थोड़ा सा, यदि आप, इफ यू आर कैपेबल, go for self study, but in case you are novice, जब से आपने स्टार्ट किया, you can also join any coaching depending on your pocket and your need also. So but लास्ट में आपको वही होता है, आपकी डाउट्स होंगी, ठीक है ना, जिसको सॉल्व करने के लिए शायद आपके पास कोचिंग वालों का भी लिमिटेशंस होता है, दे डोंट गो फॉर एन एक्स्ट्रा माइल, एंड वी आर टेकिंग दिस पेन, ऑल्दो ठीक है जो भी जैसा है, बट वी आर टेकिंग दिस पेन टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो लास्ट में आपको ये फील होगा आफ्टर 1 or 2 years कि यू हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी एंड टाइम, एंड रिजल्ट वही होता है लास्ट में, कुछ होता नहीं है। नाउ current affairs are not incorporated in test series. How can we practice current affairs? This is question from K Praveen Kumar. Praveen, this is not, I will say, correct. Current affairs also, affair question also are being incorporated in our test series, because we are having this ratio of 80 to 20%. 20% of in every test series, 20% question of your mark for the current affairs only. Even this coming week you will having this आपके पास जो टेस्ट सीरीज होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, I will again repeat it, free of cost. You can also go to our website and enroll yourself for the free test series, और इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं। इट इज रेशियो इज 20%। इन केस 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, तो 20% विल मार्क फॉर द करंट अफेयर्स क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गिव यू ए comprehensive preparation. Okay, so it is not correct that current affair question are not incorporated. In case there is something missing out, we'll try to make it up in coming sessions also. Next question is from Neetu. Sir, I have recently started preparation and I am finding it very difficult to approach a newspaper. There are notes available in the market, but for a newcomer like me, this is also difficult to comprehend notes. Comprehend notes. Okay, very good question, Neetu. First, congratulations. Like you have been quite honest while putting the question. Yes, for newcomers, it is really difficult to approach a newspaper. Okay, so and this is beautiful question, and I think even the expert who are in, who have whomsoever invested 1 or 2 year, उनके लिए मैं आगे का जो 10 minute है ना, वो काफी important होने वाला है, how to approach a newspaper and how to comprehend anything over the newspaper. So basically मैं आज का ही न्यूज़पेपर देख लेता हूँ, ठीक है ना। आज का मैं इंडियन एक्सप्रेस देख रहा हूँ, बिकॉज आई टुडे रेफर्ड दिस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ओनली। दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है ना। इसमें दो न्यूज आया हुआ है, और अब जैसे आप जैसे न्यू कमर है नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जनरली दे गो फॉर दिस हेडिंग वाला न्यूज जो होता है, ठीक है ना। बट
वेरी इंटरेस्टिंग, दो न्यूज आया हुआ है, साइड में आया हुआ है. इवन आई विल सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दिस न्यूज़पेपर. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. इनके समवन इज गिविंग मेंस दिस ईयर, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स जो है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट. कैसे इंपॉर्टेंट है, आई विल डिस्कस वन बाय वन. First question is the in the left side corner. SC stop. SC means Supreme Court stops Kandi Road work inside Rajaji Tiger Reserve. Okay, ये एक न्यूज आया हुआ है. अच्छा, क्या होता है ना, अब जैसे मैं प्रिपरेशन मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करता था, ऐसे न्यूज का मैं ऐसे पढ़ लेता था, ठीक है ना. बट क्वेश्चन यदि टेस्ट सीरीज का भी हुआ तो क्वेश्चन कुछ किस चीज से और आ गया, मैंने पढ़ा तो है सारा, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा. लेटर ऑन क्या होता है ना कि एक टर्म होता है, ठीक है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग. तो वेल डीलिंग विथ एनी न्यूज, ठीक है ना, जस्ट गो फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग काइंड ऑफ थिंग. अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, मैं भी आपको बताता हूँ और कैसे ये होता है, ठीक है ना. और ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन न्यूज़पेपर, ठीक है ना. तो अब मैं कहता हूँ कि जस्ट गिव रीडिंग टू न्यूज, ठीक है ना, दैट वी विल आल्सो प्रोवाइड बाय एंड ऑफ मंथ. उसमें आपको क्या करना है, न्यूज को पढ़ना है पहले. ऐसे पढ़ लिया नॉर्मली, दिस हैपेंड, ठीक है ना. इन केस यू आर हैविंग दिस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो ब्लॉग के बाद जस्ट गो टू द न्यूज, एंड मैंने जो जो बताया था, ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है ना. यू विल फाइंड आपका जो स्ट्रेटेजी है ना, और आपका जो अप्रोच है, वो न्यूज के लिए चेंज हो जाएगा पूरा. कैसे होगा वो आपको फील होगा. नाउ मैंने इस न्यूज को देखा था, ये क्वेश्चन मुझे लाइक हम लोगों ने फ्लोट भी किया था, वी आर गोइंग टू हैव वन वेबिनार ऑन द सैटरडे फॉर. तो ये क्वेश्चन थोड़ा पहले हुआ था, आई गॉट ए टाइम टू जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर, ठीक है ना. मैंने नोट्स नहीं बनाया, बट मैं अप्रोच के बारे में बता रहा हूँ. आई विल लेट यू नो द हाउ टू डिग एनीथिंग, ठीक है ना, रादर देन गिविंग यू अ क्रूड न्यूज, ठीक है ना. सो दैट कि मैं नहीं भी रहूँ या कोई आपका टीचर नहीं भी रहे, सो दैट आपको बिना किसी टीचर के या बिना किसी के आपको मतलब न्यूज पढ़ना आ जाए एटलीस्ट, ठीक है ना. इट्स वेरी रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंडेड फॉर ऑल दीज न्यू कमर्स, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत इसेंशियल होता है. अब ऐसे न्यूज़ेस पढ़ लेते हैं जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो ऐसे न्यूज़ेस को स्किप कर देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू द न्यूज़. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कांडी रोड वर्क का जो प्रोजेक्ट है इनसाइड द राजाजी पार्क, इट शुड बी स्टॉप्ड. उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना. बट बिफोर गोइंग टू द एनी न्यूज, आई विल सजेस्ट यू टू गो टू द यूपीएससी सिलेबस अवेलेबल ओवर द यूपीएससी वेबसाइट, और इट इज गिवन अपॉन आवर वेबसाइट एज वेल. हमारे वेबसाइट में थोड़ा सा उसको डिफरेंट लेवल से सेग्रीगेट कर दिया गया साइंटिफिकली, ठीक है ना. in order to to reduce your pen, basically only 358 topics are there. और हम लोग ने क्या किया कि सबको सेग्रीगेट किया दिया डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस एंड द नेचर ऑफ द अपना सिलेबस. तो फर्स्ट मैंने कहा था कि सिलेबस तो एकदम से याद कर लो, ठीक है ना. याद करना तो मीन्स रट्टा मार लो. रट्टा मारने का मतलब है कि वेन एवर कोई इस टाइप का न्यूज आए तो आपके दिमाग में हिट होना चाहिए किस पेपर से है. और मैं इसे इसको रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इट कम्स अंडर द इन्वायरमेंट, ठीक है ना. राजा जी टाइगर रिजर्व है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पेपर 3 का पार्ट है. बट ऑफ लेट प्रीलिम्स में जियोग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है ना. द माउंटेन्स एंड रिवर्स surrounding by these national park, you can go to the previous year question, you will find the evidences also, ठीक है ना. तो क्या होता है, इट में बी पार्ट ऑफ पेपर 1 ऑल्सो, ठीक है ना. ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है ना. ज्योग्राफिकल फिनोमिना और जो भी है इंडिया उसका पार्ट, ठीक है ना, इंडिया में जो भी है, ठीक है ना. अगेन पेपर 2 में भी एक आता है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, एनजीटी, ठीक है, और फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. इट मे बी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटरी स्टेचुरी बॉडीज जो भी उनका पार्ट बन सकता है. इट ऑल्सो द पार्ट ऑफ पेपर 3. अब देखो, आपको सिलेबस याद है, आपके दिमाग में आपके मसल मेमोरी में ऐड है वो कि ये इस पेपर का पार्ट है. सो नेचुरली आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है ना. सो फर्स्ट गो फॉर द सिलेबस. सिलेबस को एकदम से कहीं पे आप चिपका लो, वॉलपेपर बना लो, कुछ भी करो उसका, ठीक है ना. और ऑल्सो इन केस यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू डिसिफर द सिलेबस, यू गो टू द वेबसाइट, वहां पे आपको न्यूज को मैं कैसे डील करूंगा. दो टाइप का अप्रोच होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड, ठीक है ना. बिकॉज द प्रिपरेशन कांट गो इन सैलोस, ठीक है ना. यू विल नीड डेफिनेटली एन होलिस्टिक अप्रोच एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच शुड बी देयर टू while dealing with any news or newspaper or news article, ठीक है ना. तो try to dig in what is important for prelims and what is important for the mains purpose. यहाँ पे prelims के लिए क्या important है,
फर्स्ट व्हाट इज नेशनल पार्क, गो टू द वेबसाइट जो भी है अवेलेबल, ठीक है ना। नेशनल पार्क का डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लो फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, नहीं है तो रेड बुक्स में दी हुई है, यू कैन गो टू दिस, ठीक है ना। दूसरी बात, राजा जी नेशनल पार्क, फर्स्ट न्यूज ये है राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है ना। दिस इज राजा जी नेशनल पार्क। तो राजा जी नेशनल पार्क का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, गूगल इट, ठीक है ना, नोट्स में लिख लो इसको आप, ठीक है ना। रिवर्स माउंटेन्स सराउंडेड बाय द राजा जी नेशनल पार्क इन एंड अराउंड, क्योंकि दो पिछले एक साल के पिछले सेट लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इस नेशनल पार्क के बिसाइड्स कौन सी रिवर या माउंटेन्स हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, ठीक है ना। तो यू कैन ऑल्सो गूगल इट, और नोट्स में भी अवेलेबल होता है जनरली, ठीक है ना, कि है हमारे नोट्स में भी कि वेयर इज द लोकेशन इन द रिवर्स सराउंडेड। सेकंड वन इज द इन द news itself, and you will go to, and I will suggest you to go to this news because very important, this one, ठीक है ना। So second was the Corbett, Jim Corbett National Park, again वहां पे भी geographical location of the Corbett National Park and the reverse mountains surrounded by it, ठीक है ना। ये अच्छे से कर लेना, prelims के लिए काफी important है। फिर इसमें एक वर्ड आया है सेंट्रल empowered कमिटी, ठीक है ना। you will have to look the central empowered, what is central empowered committee, what is mandate and composition of central power committee, ओके। सेंट्रल empowered कमिटी, आपको इन दिन का मैंडेट और कंपोजिशन डेफिनेटली देखना पड़ेगा। इन केस you are not able to go for extra mile, we will give you all this information in our coming notes, जो भी होगा ना सारी चीजें ऐसे देंगे, and this is our approach also, ठीक है ना। now इसमें एक और क्वेश्चन है कि एनजीटी, इसमें एक टर्म है एनजीटी, when you go through this entire, छोटा सा न्यूज है बट इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज हुए हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। So just go for what, how and why kind of thing of the NZT, ठीक है ना। मीन्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, मैंडेट इसका क्या है, ठीक है ना, और कब कौन से लॉ के थ्रू ये एम्पावर्ड है, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, जस्ट गो थ्रू इट, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द वेबसाइट ऑल्सो, ठीक है, एनजीटी के। नाउ ये तो हो गया सारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज। आई विल रिकॉल राजा जी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, एनजीटी एंड सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, ठीक है ना। सबका व्हाट, हाउ, व्हेन, ठीक है ना। उससे पहले व्हाट इज नेशनल पार्क डेफिनेशन, ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग और स्टैट्यूटरी बैकिंग जो भी है वो भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। सो इसके बियॉन्ड इस न्यूज से कुछ नहीं आने वाला प्रीलिम्स में, ठीक है ना, दिस फॉर द श्योर, इसके अलावा कुछ आ भी नहीं सकता क्योंकि जितने कीवर्ड्स है सबको हमने डील कर लिया। द सेम थिंग इज डन विद आवर नोट्स ऑल्सो, जो नोट्स आता है इसमें भी ये सारी चीजें डील की जाती हैं जनरली, ठीक है ना। इन केस कहीं मिसिंग है तो जस्ट लेट अस नो, विल इनकॉर्पोरेट द सेम, ठीक है ना। नाउ सेम न्यूज मेंस में कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड फॉर न्यू कमर्स, थोड़ा सा भी आपने अच्छे से पढ़ लिया ना और समझ लिया ना इसको, यू विल क्रैक एनी क्वेश्चन, अच्छे से क्रैक कर लोगे आप। सो मेंस ओरिएंटेड क्या है, फर्स्ट क्लासिकल डिबेट, ये क्वेश्चन अभी क्या है, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ये क्लासिकल डिबेट है अमंग द पॉलिसी मेकर्स कि वी शुड प्रेफर द इन्वायरमेंट और वी शुड प्रेफर द डेवलपमेंट। सो ये क्वेश्चन अब पिछली बार भी कभी आया हुआ है, ठीक है ना, मेंस में, और अभी भी कभी भी आ सकता है क्योंकि ऑफ लेट ये चलते रहता है कि वी शुड प्रेफर द इन्वायरमेंट और द डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो इस क्वेश्चन का कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसके प्रोग्रेस को स्टॉल कर दिया, एंड व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड विद दिस, ठीक है ना। आपको इसके लिए सेपरेटली थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा विद द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया क्लासिकल डिबेट ऑन एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। सेकंड इज मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत ही न्यूज में रहता है, हमेशा रहता है। अब हर एक दूसरे तीसरे दिन देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको मैन वर्सेस वाइल्ड दिखेगा, be it tiger or be it anything, the elephant corridors are there, they are encroaching upon the human habitations and humans are retaliating back, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, ठीक है ना। उड़ीसा you will find lots of news की, यहाँ पे ये हो गया वहाँ पे, just go for man versus wild conflict, google it क्या क्या होता है इसमें, ठीक है ना। you will find lots of content also, नहीं होता है तो we are providing this in our this current affairs notes, ठीक है ना। एंड अगेन मैं लिंक कर रहा हूँ नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, पेपर 4 एथिक्स का भी ये पार्ट, इस क्वेश्चन इस न्यूज से क्वेश्चन आ सकता है पेपर 4 एथिक्स में, कैसे आएगा, इन्वायरमेंटल एथिक्स वर्सेस इमोशंस, ठीक है ना। अब कैसे होता है इमोशंस, व्हेन यू विल गो थ्रू दिस न्यूज ना, आपको वहां पे देखेगा द रोड इज क्वाइट एन इमोटिव इशू फॉर द लोकल्स, ठीक है ना। अब locals are supporting the this road, but environmentalists of our opinion that it will going to encroach upon the rights of the
animals, wild life, okay, or somehow it will lead into the man animal conflict. So in order to reduce this conflict, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जस्ट स्क्रैप दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना. सो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात है वर्सेस इमोशंस. आई विल रिपीट, दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर द पेपर 4 एथिक्स वाला. एथिक्स में क्या है, इन्वायरमेंटल एथिक्स वर्सेस इमोशंस, ठीक है ना, ये इसका पार्ट बनाती है, ठीक है ना. सो आपका यदि ये अप्रोच रहा ना, डेफिनेटली नथिंग इज गोइंग टू बी बियॉन्ड दिस न्यूज, ठीक है ना. एंड दिस वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस थिंग्स इन आवर करंट अफेयर्स नोट्स, ठीक है ना, जो आपको मिलेगा आफ्टर थर्ड मंथ, एवरी आफ्टर थर्ड और इन द थर्ड मंथ ऑल्सो. बट बिफोर दैट यू विल गेट crude news from our side in the ebook form, so that you can develop the habit of reading. क्योंकि क्या हुआ, डिजिटल जब से डिजिटल इवोल्यूशन हुआ है, मोस्टली वी आर शाइंग अवे फ्रॉम दिस रीडिंग हैबिट, ठीक है ना. सो इन ऑर्डर टू इनकलकेट दिस, एंड सेकेंड दिस क्रिटिकल पावर ऑफ थिंकिंग, वो भी आपके पास रहना चाहिए, ताकि आपके पास यदि आपने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया हो ना इंटरव्यू में जैसे, तो इट विल हेल्प यू लॉट टू this decode all these questions and queries of anyone, ठीक है ना. Now on the same line, मैं ऐसा नहीं है कि बस एक न्यूज को डील कर रहा हूँ, आई विल डील द सेकेंड न्यूज ऑल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली, ठीक है ना. द न्यूज इज ऑन द पर्सियन गल्फ ऑन द बॉयल, नेवी स्टार्ट्स escorting इंडियन मर्चेंट शिप्स, ठीक है ना. इट इज इंडियन एक्सप्रेस का पार्ट है, ठीक है ना, आज का इंडियन एक्सप्रेस. और यहाँ पे साइड कॉर्नर में है, छोटा सा न्यूज है. जनरली वी आर सपोज टू, जनरली ये होता है कि हम लोग स्किप कर देते हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. कैसे, आई विल डील अगेन. अब क्या है ना, फर्स्ट थंब रूल, ठीक है ना, गो टू द सिलेबस. सिलेबस हमारे वेबसाइट पे भी सेग्रीगेटेड है, यूपीएससी का तो है ही. योर चॉइस, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है ना. हम लोगों ने थोड़ा साइंटिफिक डिवाइस किया हुआ है सिलेबस के साथ. लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन भी है, इन ऑर्डर टू गिव यू ए गुड इंसाइट ऑफ द level of UPSC, what UPSC thinks, and from where UPSC is putting the questions. So you will get over there 20 year का question and the syllabus, ठीक है ना. सिलेबस कहाँ का आता है, सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना, ये पेपर 1 का पार्ट है. पर्सियन गल्फ कहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन, डेफिनेटली यू हैव टू गो. कंट्रीज और द ओशंस सराउंडेड बाय दिस पर्सियन गल्फ, दे कैन आस्क, और ये फ्रिक्वेंटली होता है. मिडिल ईस्ट में है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि दिस आर द हॉट एंड फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी. वो हमेशा इस टाइप के एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो, जो न्यूज में बहुत सारी जाता है, जिसका कोई लार्ज इंपैक्ट इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन और सिनेरियोज और पॉलिसीज पे भी आया, ठीक है ना. तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछिए. तो और लास्ट इस बार भी हमने देखा प्रीलिम्स के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं मई और जून लास्ट ईयर से आ रहे हैं, तो दिस इज द न्यूज यू कांट स्किप एक्चुअली. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है. इसलिए जीएस पेपर 2 का में आईआर का पार्ट है, ठीक है ना. आईआर डेफिनेटली आईआर का बहुत बड़ा पार्ट है, बट इट इज रिलेटेड टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी आल्सो. सो you can't read the or go to the syllabus and go for the preparation in silos. You will have a comprehensive approach while dealing with syllabus. तो आपको पूरा देखना पड़ेगा किस किस सिलेबस में किसका पार्ट हो सकता है. जस्ट do a brainstorming before reading a news article or news thing, ठीक है ना. And especially Neetu, for the person like you, it is mandatory to go for the syllabus. And I will repeat, syllabus is given into our website also. Now coming to the pre-oriented part, again I will say ki just go for pre as well mains. Never give prepare in silos. Like मैंने prelims का prepare कर लिया and मेंस का तो prelims में हो जाएगा, फिर देखेंगे. ऐसा नहीं होता. रीजन बीइंग कि prelims के बाद आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है. 3 or 4 मंथ का विंडो होता है, until and unless you start पहले से, ठीक है ना. You won't be able to comprehensively cover the syllabus 3-4 महीने में. For this we have devised this 55-week syllabus. Start going through these syllabus and the work plan right from today or from tomorrow, in order to give a wholesomeness to your preparation. This is basic thing यही है. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. मैं भी बता रहा हूँ कि हमारे टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये हमारा जो सिलेबस है तो हमने स्प्लिट किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओपन है, ओपन प्लेटफॉर्म पे है, और आप कोई भी बंदा जाके बस देख सकता है. और वो कैसे, और अपना आप खुद का भी डिवाइस कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस ब्लूप्रिंट ओनली. नो थंब रूल, इन केस यू आर फाइंडिंग सम टॉपिक्स इजियर फॉर यू, आप उसमें कम टाइम देके किसी अच्छे टॉपिक में ज्यादा टाइम दे सकते हैं.
बट ट्राई टू मैनेज योर टाइम, लाइक कि आपको 55 वीक या 56 वीक्स ही हैं पूरे साल में, उतने में आपको प्रिपेयर करना है। नाउ कमिंग टू द प्री ओरिएंटेड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑफ द न्यूज। प्री ओरिएंटेड इसका क्या है? फर्स्ट, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। व्हेन वी गो थ्रू दिस न्यूज ना, तो आपको दो आएगा, तीन बेसिकली आएंगे जियोग्राफिकल लोकेशन। फर्स्ट, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड द स्टेट ऑफ होमस। सो जस्ट गूगल द लोकेशन, ocean surrounded by it, countries surrounding all these gulf and states, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स वर्स, क्योंकि यूपीएससी मैंने फिर कहा कि पूछती ही है ऐसा, ठीक है ना। नो, second, navy in order to protect our interest in these gulf, Persian Gulf or the Gulf of Oman, started operation sankalp, ठीक है ना। I will repeat, operation sankalp. Now just google the operation sankalp, what, by whom, where। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ऑपरेशन संकल्प वाज समटाइम्स इन न्यूज रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू दिस, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, ठीक है ना। सो आपके पास वो एक आइडिया होना चाहिए हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन द न्यूज इन ऑर्डर टू क्रैक द क्वेश्चन दैट यूपीएससी इज बीइंग इज आस्किंग ईयर बाय ईयर, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प। बस बट गो टू द न्यूज ऑल्सो, ठीक है ना। मेरे एक वीडियो लेक्चर के बाद यू विल हैव टू गो टू द दिस न्यूज ऑल्सो इन ऑर्डर टू better develop the understanding how to comprehend any news. Again, next is one institution, again काफी important है, last to last year शायद operationalize हुआ था ये, the information fusion center, Indian Ocean region। this is the name of institution with the headquarter in Gurgaon, ठीक है ना। it is headquarters at Gurgaon, or I will repeat, headquarters is Gurgaon। the name of the institution is the information fusion center, Indian Ocean region, ठीक है ना। again आपको करना पड़ेगा what, administered by which organization? It is administered by the Navy, obviously। the mandate of this organization, the Indian Information Fusion Center, इसका क्या mandate है, ठीक है ना। आपको ये देखना पड़ेगा, यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन पूछती है। फिर इस न्यूज में आया हुआ है ना कि आवर इंडियन नेवल शिप्स, ठीक है ना, चेन्नई क्लास एंड ऑल आर स्कॉटिंग आवर आवर दीज ऑयल कैरिंग वेसल्स, ठीक है ना। तो यू विल हैव टू गिव एन अटेंशन टू कि टाइप क्या होता है, जैसे तलवार क्लास है, कावेरी क्लास है, डिस्ट्रॉयर है, क्या है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल्सो गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द मेंस ओरिएंटेड अप्रोच टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, टू द न्यूज। अब मेंस में क्या होगा, अगेन थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं ले जाऊंगा, ठीक है ना। अभी एक दो दिन पहले अपना लोकसभा यानी पार्लियामेंट का जनरल सेशन शुरू हुआ। आफ्टर द जनरल इलेक्शन, फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स कि आफ्टर जनरल इलेक्शन, ठीक है ना, इफ प्रेसिडेंट एड्रेसेस और नॉट, तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो होता है ना, इट लेज्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 और 6 ईयर, जो भी जितने टाइम का गवर्नमेंट का लाइफ होगा ना, फॉर द लाइक अभी जो गवर्नमेंट है उसकी लाइफ 5 साल की है फ्रॉम द इंटरिंग द ऑफिस, तो 5 साल का जो भी उसका पॉलिसी होगा ना, उस प्रेसिडेंशियल स्पीच में रिफ्लेक्ट होता है। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो टू द प्रेसिडेंशियल स्पीच वंस, ठीक है ना। उसमें देखो कि इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेक्शन में यू विल फाइंड, इन केस यू आर हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस, यू विल फाइंड कि वहां पे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन के चीजों को भी एड्रेस किया, बिकॉज ये कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट्स, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में आपने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने देखा इंडियाज इंटरेस्ट इन द फॉरेन और द इंडियाज डायस्पोरा और व्हाटएवर थिंग्स आर इंटरनेशनल रिलेशंस में, बस नोट डाउन इट, देखो। और अब यू विल फाइंड कि जो मिडिल ईस्ट है, इट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है ना। इनसाइट दे देगा कि बेसिकली इंडिया की क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द मेंस पार्ट, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है ईरान, इंडिया, यूएसए, ठीक है ना, ट्रायंगल बनता है पूरा, और इंडिया, ईरान, इजराइल। इजराइल भी आल्सो वन ऑफ पार्टी टू ऑल दिस डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। तो ट्राई टू गो टू द क्रोनोलॉजी ऑफ द रिलेशन विच इवॉल्व ग्रेजुअली बिटवीन इंडिया ईरान, बिटवीन इंडिया यूएसए, बिटवीन यूएसए इंडिया एंड ईरान इंडिया, ठीक है ना। पूरा एक ट्रायंगल बन जाता है इस टाइप का, ठीक है ना, पूरा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन जाता है जिसमें क्या क्या देखना आपको, फर्स्ट कब से डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए, ठीक है ना, डेवलपमेंट क्या हुई, और इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, राइट। ऑफ लेट इट इज चेंजिंग ऑल्सो, पहले हमारा कुछ और पॉलिसी था, एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद हमारी पॉलिसीज भी चेंज हो गई हैं, ठीक है ना। जस्ट गो फॉर
this, and there are few D's of the international relations, ठीक है ना. D's in terms of what, ठीक है ना. D's से कुछ आजकल वर्ड काफी चल रहे हैं, A's and B and C. तो हम लोगों ने भी कुछ डिवाइस किया D's ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. D's में क्या क्या आता है. फर्स्ट इज डिफेंस, ठीक है ना. इंडिया का डिफेंस इंटरेस्ट क्या है, मींस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है इन द मिडिल ईस्ट और इन द पर्सियन गल्फ और इन द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है ना. सेकेंड, what are the development issues over there, ठीक है ना. if India is party to any development kind of thing in the Iran, on the in the Gulf of Oman or whatever things are, ठीक है ना. और उन लोगों का कोई इंटरेस्ट है हम लोग इंडिया में इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जस्ट गो फॉर ऑल्सो. और थर्ड इज डायस्पोरा, ठीक है ना. डेफिनेटली इंडियन डायस्पोरा बहुत ही वाइब्रेंट है, इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस ऑल्सो. यू विल हैव टू गो कि इंडियन डायस्पोरा का आउटरीच क्या है ईरान में, हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स वहां पे क्या क्या है, हम लोग किस टाइप की चीजों का एक्सचेंज होता है हमारे और ईरान के बीच और हमारे यूएसए के बीच, और रिलेशंस इन केस ऑफ गोइंग टू बिटर in between Iran and USA. So how it is going to jeopardize the prospect of India in terms of what, क्या हो सकता है इंडिया का इंटरेस्ट क्या क्या हैम्पर सकता है यदि ईरान और यूएसए में एस्केलेट हो जाए टेंशन, क्या क्या हो सकता है. पहला, एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है ना. एनर्जी हम लोग ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, एनर्जी पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना. आपको एनर्जी कहीं ना कहीं यू विल बी जियोपार्डाइज, ठीक है ना. फॉर द हाउ मच सिक्योरिटी ऑफ इंडियन शिप्स, ठीक है ना. ये हमारे एसेट्स हैं इन दिस गल्फ ऑफ ओमान और व्हाटएवर थिंग, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे सिक्योर हो सकती है. अगेन ऑपरेशन संकल्प इज देयर, संकल्प या. सो इस टाइप से ना आप डील कर सकते हैं. एक्चुअली मैं मेरा मतलब मेरा इतना मतलब डिटेलिंग में जानने का कि हाउ टू अप्रोच एनी न्यूज पर से, ठीक है ना. नाउ प्रोटेक्टिव मेजर्स बाय इंडिया, लाइक इंडिया ने जैसे नेवी का वहां पे डिप्लॉय कर दिया है, या फिर इंडिया इज वन ऑफ पार्टी बिटवीन टॉप एंड इट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल बिटवीन ईरान एंड इजराइल और ईरान एंड यूएसए इन ऑर्डर टू डीस्केलेट द थिंग. तो वो भी आप देख लेना. एंड सजेशन वे फॉरवर्ड, डेफिनेटली आपको सजेशन देना. बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड हैव वन सजेशन, वन सॉलिड सजेशन इन ऑर्डर टू deal with all these things. Now next question is Ambika Bhavani, ठीक है ना. Clarity on writs, yeah, definitely Ambika.